हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एचएस नॉलेज। आज हम नेशनल रोड सेफ्टी मंथ के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। सो व्हाट इज़ बैकग्राउंड ऑफ नेशनल रोड सेफ्टी मंथ? नेशनल रोड सेफ्टी मंथ इन इंडिया इज़ एन इनिशिएटिव to create the awareness about road safety and reduce road accidents and fatalities. The background of this observance is rooted in the country's commitment to improving road safety standards and achieving the global sustainable development goals. India traditionally observed Road Safety Week since 1989, organized by the Ministry of Transport and Highways (MORTH). In 2021, the government expanded this campaign into National Road Safety Month to provide a broader and more impactful platform for activities and awareness programs. The objective of this campaign is to spread the awareness about consequences of road accidents, encourage the compliance with the road safety rules, promote safer infrastructure and road practices among all stakeholders, including pedestrians, motorists and government agencies. So friends, ये बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MORTH बोलते हैं हम लोग, तो उन्होंने पहले रोड सेफ्टी वीक मनाना चालू किया था सिंस 1989। सो उसके बाद उन्होंने एक्सपेंड किया एंड कन्वर्टेड इनटू नेशनल रोड सेफ्टी मंथ। वो शुरुआत की 2021 में। सो ये कैंपेन बेसिकली बनाया है टू रिड्यूस द एक्सीडेंट्स एंड क्रिएट द अवेयरनेस ऑन रोड सेफ्टी। ऑब्जेक्टिव बताया है टू स्प्रेड द अवेयरनेस अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रोड एक्सीडेंट्स। रोड एक्सीडेंट्स होने के बाद क्या क्या परिणाम होते हैं, क्या क्या लॉस होता है, क्या नुकसान होता है, उसके बारे में अपना अवेयरनेस होने के लिए ये कैंपेन है। एनकरेज द कंप्लायंस विद रोड सेफ्टी रूल्स। रोड सेफ्टी के क्या क्या रूल्स है, क्या क्या स्टैंडर्ड्स है, तो उसके बारे में अपने क्या क्या कंप्लायंस करना चाहिए, उसके बारे में ये कैंपेन बनाया है। प्रमोट द सेफर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रोड प्रैक्टिसेस अमॉन्ग ऑल स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग पेडेस्ट्रियंस, मोटरिस्ट एंड गवर्नमेंट एजेंसीज। जो लोग अपने रोड्स का इस्तेमाल करते हैं उसमें क्या क्या रोड प्रैक्टिसेस फॉलो होना चाहिए और उसमें क्या क्या अपनी इंडिविजुअल जिम्मेदारी रहता है। जैसे बताया जाता है रोड सेफ्टी इज़ द इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, या हर एक इंसान की जिम्मेदारी रहता है जो रोड में ड्राइव करता है। मे बी मोटरसाइकिल रहेगा या फोर व्हीलर रहेगा या ट्रक्स रहेगा, हेवी व्हीकल्स रहेंगे, तो अपना अपना जिम्मेदारी से वाहन चलाना चाहिए। और जो भी रोड के जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, ट्रैफिक साइंस है, वो उसको फॉलो होना चाहिए। सो इसके बारे में ये ऑब्जेक्टिव्स ओवरऑल रखा है फॉर द कैंपेन। तो सो फ्रेंड्स, चलो हम आगे चलते हैं। नाउ here is the circular from the government, that is MORTH, and they have issued to all stakeholders, and circular was on 27th December 2024। तो इसमें बताया है कि नेशनल रोड सेफ्टी मंथ 2025 will be observed from 1st January to 31st January to propagate the cause of safer roads for all. The initiative aims to unite all stakeholders and the general public through various events and activities. All stakeholders are requested to organize road safety activities, trainings, workshops, seminars, eye checkup, camps and advocacy program for drivers and school children during the Road Safety Month. It is requested that Road Safety Month be organized from 1st January to 2025 in to spread and propagate the cause of safer roads amongst the stakeholders. These endeavors would contribute a lot to achieve the target of reduction of road accidents, deaths and injuries in the country. So this is circular about National Road Safety Month. Now this is a briefing about Road Safety Month. Duration is 1st January to 31st January 2025 and National Road Safety Week also मनाया जाता है between the 11th January to 7th January 2025. This is associated event to National Road Safety Month.
Organizer is the Ministry of Road Transport and Highways, that is a MORTH, Government of India. Purpose is to raise the awareness about road safety and reduce the road accidents. Focus area will be safe driving practices, that is a follow speed limit, use seat belts, awareness of pedestrian rights, avoiding distractions like use of mobiles, talking, reading, eating during the driving of vehicles. Activities plan is the workshops and seminars, safety camps, community engagement events, and so on. So पहले वीक मनाया जाता था which was from 11 January to 17 January, and it was started in 1989, and now the safety month is started, which was started from 2021. So basically each year National Road Safety Weeks observed under the specific theme. एक स्पेसिफिक थीम रहता है और उसके अनुसार अपना सेलिब्रेशन किया जाता है. तो थीम दिस ईयर इज़ नॉट अवेलेबल नाउ, बट प्रीवियस थीम्स वेयर सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, यानी कि अपना जो रोड का सेफ्टी जो रहता है, दैट इज़ आवर लाइफ सेफ्टी. एंड ड्राइव सेफ स्टे सेफ्स, जब आप सेफ या केयरफुली ड्राइव करेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे. फॉलो ट्रैफिक रूल्स फॉर ए बेटर फ्यूचर्स, अपने फ्यूचर्स के लिए ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना ज़रूरी है. बी ए रोड सेफ्टी हीरो, हम लोग रोड सेफ्टी के बारे में हमेशा टॉप में रहना चाहिए. सो दिस इज़ ऑल अबाउट थीम्स एंड ब्रीफिंग ऑफ नेशनल रोड सेफ्टी मंथ. सो फ्रेंड्स, दिस इज़ अ वेरी सीरियस मैटर अबाउट द रोड एक्सीडेंट्स. आप यदि देखेंगे तो this trends is not reducing since 4-5 years, and which is similar to the same accidents happening year on year. So Ministry of Road Transport and Highways shares accident data for the previous year in its annual report. The year 23-24 annual report provides the accident figures for 2022. Here are some of the accident statistics 2022. तो ये 2022 का डाटा है. नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स आर 4,61,312 एक्सीडेंट्स. नंबर ऑफ इंजुरीज आर 4,43,366 people were injured. Number of deaths are 1,68,491 people died in 2022. So friends, this is a very serious figures. So death is very serious. There are tremendous loss to the families, to the societies and to the nations. Death होता है मतलब there is a financial loss plus human loss and total loss to the families. So 1.68 lakhs means there is a 462 per day. ये अपना fatal cases होते हैं in India. So this is a serious figures. इसलिए हर स्तर पर अपना रोड सेफ्टी के बारे में बताया जाता है. सेफ्टी रूल्स फॉलो करने के लिए बताया जाता है, ट्रैफिक रूल फॉलो करने के लिए बताया जाता है, व्हीकल कंडीशंस ठीक करने के लिए बोला जाता है, अपना स्पीडिंग ठीक रखने के लिए बताया जाता है. सो ऑल दीज फैक्टर्स आर रिलेटेड टू रोड सेफ्टी. टाइप्स ऑफ व्हीकल्स, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है. टू व्हीलर्स वेयर इन्वॉल्व 44.5%, पेडेस्ट्रियंस 19.5%, लाइट मोटर व्हीकल्स 12.5% and other vehicles 23.5%. सो टू व्हीलर से भी एक्सीडेंट्स हुए हैं. पेडेस्ट्रियंस जो पैदल चलते हैं उसके भी एक्सीडेंट हुए हैं. LMV के एक्सीडेंट्स हुए, लाइट मोटर व्हीकल्स बोलते हैं, एंड अदर व्हीकल के वजह से भी एक्सीडेंट्स होता है. सो दिस इज़ अ परसेंटेज काउंट फॉर द एक्सीडेंट्स. सो लोकेशंस ऑफ एक्सीडेंट्स आर नेशनल हाईवेज एंड एक्सप्रेसवेज अकाउंटेड फॉर 39.2, यानी कि 40% एक्सीडेंट्स नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे में हुआ है. एंड उसमें से 36.2% डेथ हुए हैं. Causes of accidents, its over speeding was the leading cause of death.
So this is a major cause or major reasons, that is the over speeding of vehicles. जब आप गाड़ी चलाते हो तो आपका स्पीड से ज़्यादा चलाते हैं, या 80 लिखा है 60 ले है तो आप 100 का स्पीड से चलाते हैं, और जब स्पीडिंग बढ़ जाता है या गाड़ी का स्पीड बढ़ता है तो वो कंट्रोल करने में बहुत मुश्किल होता है। तो उसके वजह से अपना सेफ स्पीड रखना ज़रूरी है, ताकि अपना आगे जाके एक्सीडेंट्स नहीं होगा। सो दीज आर द कॉमन कॉजेस ऑफ रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया। फर्स्ट वन इज़ द ओवर स्पीडिंग एंड केयरलेस ड्राइविंग, या उसको रेकलेस ड्राइविंग बोलते हैं। आप ओवर स्पीड से चलाते हो गाड़ी, और उसके साथ जो भी है रेकलेस, यानी कि आप केयर नहीं करते हो, आगे से आने वाला है या साइड से चलने वाले हैं या मोटरसाइकिल वाले हैं या ऑटो वाले हैं, उसका भी केयर होना चाहिए। ड्रंक ड्राइविंग यानी कि आप अल्कोहलिक कंडीशन में गाड़ी चलाते हो, सो उसमें से आपको कंट्रोल, व्हीकल के ऊपर का कंट्रोल इमीडिएटली चला जाएगा, आप कंट्रोल नहीं करेंगे। डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग यानी कि आप ड्राइविंग करते समय आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो, या किसी से बात करते हो, या कोई पढ़ते हो, तो ऐसे आप वेरियस एक्टिविटी करने के बाद आपका जो ध्यान है या आपका कंसंट्रेशन है ड्राइविंग का, वो चला जाएगा। तो वो नहीं करना चाहिए। फटीग, यदि आप टायर्ड है या आपको कोई आप अंडर मेडिकेशन है, तो ऐसे कंडीशन में आप गाड़ी चलाएंगे तो आपको एक्सीडेंट्स का संभावना बढ़ जाएगा। पॉटहोल्स अपने देखे हैं, रोड में ऐसे खड्डे रहते हैं या पॉटहोल्स रहते हैं, तो उस टाइम से ऐसा गाड़ी चलाने के टाइम ध्यान नहीं है तो गाड़ी अपना टिल्ट हो सकता है, गाड़ी का एक्सीडेंट्स हो सकता है। एंड पुअर रोड कंडीशंस या रेन्स और वेट रोड्स, कभी कभी बारिश में अपना जो ऐसे पॉटहोल्स रहते हैं वो भर जाते हैं, वो दिखते नहीं हैं, तो और उस टाइम गाड़ी कंट्रोल के बाहर जाते हैं। सो दिस इज़ द रीज़न्स। ब्रेकिंग ऑफ ट्रैफिक रूल्स यानी कि आप ओवरलोडिंग, व्हीकल का ओवरलोडिंग रहता है, ओवर स्पीड रहता है, या उसको ओवरटेकिंग के टाइम्स रॉन्ग साइड से आप ओवरटेकिंग करते हो, या अलग अलग ऐसे रूल्स ब्रेक होते हैं। आपका ट्रैफिक साइंस जो रहता है उसको फॉलो नहीं होता है, तो अलग अलग ऐसे रूल्स, ट्रैफिक रूल्स ब्रेक होते हैं। सो दीज आर द कॉमन रीजन्स ऑफ रोड एक्सीडेंट्स इन आवर इंडिया। नेशनल रोड सेफ्टी मंथ के लिए वी कैन प्लान द वेरियस एक्टिविटीज़ विच विल बी कंडक्टेड, या आप इस जनवरी मंथ में कर सकते हो। एग्जाम्पल्स आर द रोड सेफ्टी एजुकेशंस इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। स्कूल और कॉलेजेस में आप कैंप ले सकते हैं, ये ऐसे अलग अलग प्रोग्राम कर सकते हैं, उसमें रोड सेफ्टी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशंस कैसा मिलेगा उसके बारे में आप बता सकते हैं। वी कैन अरेंज द सेमिनार्स एंड वर्कशॉप्स फॉर द कमर्शियल व्हीकल्स ड्राइवर्स एंड ट्रैफिक पुलिस पर्सनल्स, उनके लिए भी आप ये प्रोग्राम्स या वर्कशॉप आप अरेंज कर सकते हो। मेडिकल चेकअप्स एंड आई चेकअप फॉर द ड्राइवर्स जो रेगुलर ड्राइवर है या कंपनी के ड्राइवर्स रहते हैं, उसके लिए आप मेडिकल चेकअप, आई चेकअप कर सकते हो। पब्लिक डिस्प्लेज, रैलीज़ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैम्पलेट्स या पोस्टर्स आप रोड सेफ्टी के बारे में बता सकते हैं, या पब्लिक प्लेस में आप लगा सकते हो, उसमें डिस्प्ले कर सकते हैं, या उसमें से जो ट्रैफिक रूल्स है उसके बारे में पोस्टर्स बना के डिस्प्ले कर सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेशंस ऑन द करेक्ट यूज़ ऑफ सीट बेल्ट्स, हेलमेट्स एंड चाइल्ड सेफ्टी सीट्स, दिस इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अपने सीट बेल्ट्स कैसा यूज़ करना है, और आप टू व्हीलर चलाते हो कैसे हेलमेट्स डालना है, या चाइल्ड का सेफ्टी सीट्स कैसे फिक्स करना है, उसके बारे में भी आप डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हो। रोड सेफ्टी ऑडिट्स ले सकते हैं, जहाँ जहाँ अपना एक्सीडेंट प्रोन एरियाज़ है या ब्लाइंड कॉर्नर्स है, ऐसे जगह में आइडेंटिफाई करके आप उसका ऑडिट कर सकते हैं, रोड का ऑडिट, और उसमें आप डिस्प्ले लगा सकते हैं या उसको सेफ्टी साइंस लगा सकते हैं। तो उसके बाद जो गाड़ी चलाते हैं उसको वो अवेयरनेस आ जाएगा। आप सबको पता है नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया इज़ द ऑटोनोमस बॉडी एंड दे आर हेल्पिंग अस इन ऑल वेज फॉर द एनवायरनमेंट, हेल्थ एंड सेफ्टी। सो इन्होंने स्टार्ट्स किया है
काउंसिल NSC ने स्टार्ट किया 2011 में फॉर द celebration of this road safety week and month, and they are producing the promotional literatures and materials like cloth banners and safety posters and pocket guides, safety films, etc. on the road safety. So all members and patrons can get the help from the NSC for the celebration of road safety week and month. So this सो फ्रेंड्स, आपने नेशनल रोड सेफ्टी मंथ के बारे में इंफॉर्मेशन ली, अपने रोड सेफ्टी वीक जो मनाया जाता है सिंस 1989 उसके बारे में भी जानकारी ली है। सो मेरे ख्याल से ये अपना कैंपेन्स चालू होगा या चालू किया होगा। सो मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको सबको पसंद आएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो ताकि हम नए नए वीडियोस आपके लिए लेके आ सकते हैं। जय हिंद, जय सुरक्षा।